प्यारे दोस्तों और भाइयों, आज 27 जून 2025 इस्लामी साल का आज पहला दिन, एक तारीख 1446 ख़त्म हुआ। 1447 हिजरी सन इस्लामी साल नया शुरू हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये नया साल जो इस्लामी साल है, नई पीढ़ी, नए बच्चे, उनको मालूम नहीं रहता है कि कौन सा साल इस्लाम का चल रहा है या कौन सा महीना चल रहा है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम और इस्लामी साल का 12वां महीना जिलहिज जो अभी ख़त्म हुआ, जिस महीने में हज होता है। और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम के नाम से इसे जानते हैं। इस्लाम की तारीख़ बहुत शानदार और बहुत जानदार तारीख़ रही है। इस्लाम की तारीख़ में कुर्बानी, इस्लाम की तारीख़ के आखिरी महीने में हज़रत उमर की शहादत और इस्लाम का पहला महीना मुहर्रमुल हराम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और उनके अहल व अयाल और पूरा ख़ानदान जिसकी शहादतों की कहानियाँ इस्लामी इतिहास में छपी पड़ी है। ज़रूरत है उन कहानियों, उन सच्चे वाक़ियात को आज की नई पीढ़ी के सामने लाया जाए, ताकि नई पीढ़ी के दिल व दिमाग में भी इस्लाम की अज़मत, इज़्ज़त और दीन के लिए, दीन के कामों के लिए, दीन को आगे चलाने के लिए, अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग भी कोशिश करें। और इस माह मुहर्रम के महीने की तारीख़ ऐसी है कि इसमें हमें सबसे पहले जो इमाम हुसैन ने दर्स दिया, करबला के वाक़ये से कुछ मोटे मोटे सबक हमें मिले, जिसमें सबसे पहले है आदमी को हक का साथ, सच्चाई का साथ। हक के लिए आदमी को चाहे अपने अहल व अयाल, अपने आल औलाद को भी कुर्बान करना पड़े, अपनी जान को भी कुर्बान करना पड़े, तो आपको हक और सच के लिए पीछे नहीं हटना। दूसरा, इसका सबसे बड़ा अहम पैगाम हमें आज लेना चाहिए। इस करबला के वाक़ये से हमें यह दर्स लेना चाहिए कि नमाज, कि आपने हज़रत हुसैन इमाम शहीदों के जो इमाम कहा जाते हैं, इमाम हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान करते करते भी नमाज का दर्स हमें दिया था कि चाहे आपकी जान पर ही क्यों न बने, नमाज आपको नहीं छोड़नी।
تو ایک اسلام کا اہم رکن اور پہلا فرض نماز، جو کہ ہم سب عاقل اور بالغ مرد عورت بچے بوڑھے جو عاقل ہو جائیں، جو جنہیں کچھ سمجھ آ جائے، ان سب پر غریب امیر کالا گورا اجمی عربی جتنے بھی ہیں، ان سب کے اوپر یہ نماز ہمیں ضروری ہے، فرض ہے۔ اس میں کوتاہیاں ہماری ہے تو ہم گنہگار ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے سب سے پہلے درس یہی لینا چاہیے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، اور دوسرا کہ ہمیں نماز کی پابندیاں کرنی ہیں۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں جو لوگ ایمان والے تھے انہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا تھا، اور کئی ایسے لوگ بھی تھے کہ جو امام حسین کے جو خلافت میں تھے، ان کی اگینسٹ میں تھے، ان کے ورودھ جو کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دی اور وہ بھی اپنے خیموں سے نکل کر امام حسین کے خیمے میں آئے۔ ایسے بھی واقعات ہم نے سنے ہیں، عالموں کی تقریروں میں، کئی کتابوں میں بھی پڑھے ہیں۔ اور میں سبھی بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس کا پورا واقعہ، اسلام کا کربلا کا پورا واقعہ اگر سننا ہے، پڑھنا ہے یا سمجھنا ہے، تو بڑے بڑے عالموں کی آپ جو ہے وہ تقریریں سنیں یا کتابیں پڑھیں، کیوں کہ کتابوں میں اتہاس درج ہے کہ حضرت امام حسین کو کن لوگوں نے بلایا، پھر انہوں نے ان کے ساتھ میں کیسا دھوکہ کیا، اور حضرت امام حسین ثابت قدمی اور صبر رکھتے ہوئے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے جو اپنی جان کو قربان کیا، اپنے اہل و عیال کو، چھوٹے چھوٹے معصوم علی اکبر اور علی اصغر جیسے بچوں کو بھی وہ شہید ہوئے اس جنگ میں، انہوں نے ثابت قدمی رکھی اور دین کا قلعہ بچایا، دین کو بچا لیا۔ تو آج اس واقعے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے یا محرم کے مہینے میں ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے کئی خرابیاں پیدا کر لی، جو کہ واقعات یا جو کام ہم کر رہے ہیں، جنہیں ہم دین کا حصہ، اسلام کا حصہ سمجھ رہے ہیں، وہ دین اور اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں ان خرابیوں سے، ہم ان جو پہلے سے بنی ہوئی سینکڑوں سالوں سے جو چلی آ رہی ہے پرمپرائیں، ان پرمپراؤں کو ہمیں توڑنا ہے، اور اسلام اور دین کا جو سچا مذہب ہے، اسلام کی جو صحیح باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ محرم کا مہینہ، اس کے جلوس، محرم کا جو جلوس دیکھا جائے تو اس میں اس پرکار سے خرابیاں پیدا کر دی گئی ہے کہ اللہ سے توبہ ہے کہ ایسی خرابیاں ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ ہمارے نوجوان آج کیا بتائیں، بڑی شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، بڑی کوفت ہوتی ہے، شرابیں پی پی کر کے اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں، اور ڈھول تاسے اور چمچمیاں، اور اپنے آپ کو حسین کا دیوانہ سمجھتے ہیں، بجاتے ہیں اور اپنے آپ کو حسین کا دیوانہ، وہ اسے ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اور
कई जगह मुहर्रम का जुलूस ताजिया निकालना ये बंद किया जा चुका है। लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं और जो समझदार हैं वो ऐसे जुलूसों में शामिल नहीं होते, क्योंकि जुलूसों का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि उसमें बहन बेटियां, घर की औरतों को भेजना बिल्कुल भी माहौल आजकल नहीं है। माहौल में बहुत आलूदगी आ चुकी है, माहौल में बहुत खराबियां पैदा हो चुकी है कि औरतों को ऐसे जुलूसों में भेजने से हम रोकें। हमारी ये जिम्मेदारी है। एक घर के जिम्मेदार फर्द और घर के जो मेन आदमी, मुखिया होने की जिम्मेदारी उस घर के मुखिया पर आयद होती है कि वो अपनी बहन बेटियों को ऐसे तकरीबात में जाने से रोकें, जिसमें भाई अख्तर भाटी लाडनू से हैं, एक अच्छे फिक्रमंद आदमी हैं, टीचर हैं। नौजवानों की हालत तो है भाई साहब, पैर सिगरेट सा, हाथ अगरबत्ती सा और होठों में सिगरेट, मोबाइल में सट्टाबाजी ऐप और दिमाग में ठेका को नक्शो। सही बात है। आज नौजवानों की पीढ़ी, जिन्हें वास्तव में ज़रूरत तो है इल्म की या हुनर की। देखिए आज बेरोज़गारी इतनी आम हो चुकी है कि इस पर बात की जाए तो बहुत लंबा लाइव हो सकता है कि बेरोज़गारी जो इतनी है, दो ही वजह है, या तो आपने इल्म नहीं सीखा या आपने कोई हुनर नहीं सीखा। हुनर का माना यह है कोई भी काम आप हाथ से करना सीखिए, उसमें कोई शर्म नहीं, उसमें कोई ऐब नहीं। क्योंकि अगर आप पढ़ सकते हैं, घर के आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपके घर के भाई, चाचा, ताऊ, दादा, पिता आपके ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप उनकी तमन्नाओं को पूरा कीजिए, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरिए और मेहनत अपनी पढ़ाई में कीजिए। अब हर किसी के बस की बात नहीं होती पढ़ाई, मान लो समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप अपना हुनर सीखिए। हुनर के जरिए भी आप जो है बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। उससे आपका, परिवार का, समाज का, आपके गांव का, शहर का, देश का, यहाँ तक कि दुनिया का भला होगा। क्यों कि बेरोजगारी बड़ी खतरनाक है। बेरोजगारी से आदमी मोहताज हो जाता है पैसों का, और उसकी कोई इज्जत, बेरोजगार आदमी की कोई इज्जत भी नहीं। कि अगर आपको समाज में, देश और दुनिया में अपना सर ऊंचा करना है, सर ऊंचा करके चलना है, तो आपको इल्म या हुनर सीखना ही पड़ेगा। तो मैं आज के नौजवानों के हालात जब देखता हूँ, हमारे हालात ऐसे हैं कि बस पढ़ाई की तरफ उनकी तवज्जो नहीं, मोबाइल, नशा, बाइक और रातों देर तक जाग करके टेलीफोन का इस्तेमाल करना, और मैं कहूँगा इस्तेमाल नहीं बल्कि गलत इस्तेमाल करना, मिस यूज़ करना। एक होता है यूज़ करना, एक होता है मिस यूज़ करना। तो हमें अपने परिवारों को भी बचाना है, अपने परिवार के नौजवान बच्चों को, बच्चियों को भी बचाना है। और सभी भाई जो देख रहे हैं, डीडवाना से सैयद इमरान साहब भी गवर्नमेंट टीचर हैं, मोहम्मद आरिफ जी, दिनेश जी लोहिया भी गवर्नमेंट टीचर हैं, भाई जाकिर हुसैन हमारे बड़े भाई हैं, भाई अख्तर भाटी भी गवर्नमेंट टीचर हैं। समझदार लोग सब देख रहे हैं, तो बात की तायीद कीजिए या कोई कमेंट्स ऐसे लिखिए इसके सपोर्ट में कि जो है मेरी बात की तायीद हो सके और
नौजवान हमारे जो हैं वो पढ़ाई की तरफ या अपने कोई हुनर की तरफ रग़बत कर सकें। मैं आप सबको एक बार बात कहाँ से चली थी कहाँ तक पहुँच गई, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। और एक बार फिर आपको जो है इस्लामी हिजरी साल की फिर नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जुमा भी है, बड़ा मुबारक दिन है। जुमा पढ़िए, अल्लाह पाक से दुआएं कीजिए और कुछ नया करने की और कुछ अपने जीवन में सुधार करने की दुआएं या अज़्म मुसम्मम यानी पक्का इरादा कीजिए। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।